لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ لاہور کے مختلف علاقوں شملہ پہاڑی، لکشمی چوک، گوال منڈی، کرتبہ چوک، ڈیوس روڈ، جوہر ٹاؤن، گلبرگ، گارڈن ٹاؤن سمیت شہر کے دیگر مقامات پر بوندا باندی، قصور، پتوں کی، مرید کے شیخوپورہ اور دیگر شہروں میں بھی ہلکی بارش۔ ٹھنڈی ہوا نے سردی میں اضافہ کر دیا۔ اٹک، جہلم، چکوال، تلہ گنگ اور مری میں تیز ہوائیں اور بارش کے باعث ہائی الرٹ رکھا گیا ہے۔ وادی نیلم جہلم میں شدید برف باری، سڑکوں پر پھسلن سے ٹریفک کی عام طرف متاثر۔ تفریحی مقام شوگران میں 2 انچ اور نارا میں 4 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ بارش برسانے والا مغربی سسٹم شمالی بلوچستان میں داخل ہو گیا۔ الخیبر پختونخوا اسکاؤٹس اوپن گروپس کے زیر انتظام شانگلہ ٹو مالم جپا دوسرا سالانہ سنو ہائیک فیسٹیول 9000 فٹ کی بلندی پر 7 کلومیٹر پر برف باری میں منعقد ہوا۔ فیسٹیول میں خیبر پختونخوا کے 10 اسکاؤٹس اوپن گروپس اور 45 اسکاؤٹس اور لیڈیز نے شرکت کی۔ شرکت کرنے والوں میں سوات اسکاؤٹس اوپن گروپ منگورا سوات، مٹا اسکاؤٹس اوپن گروپ مٹا اپر سوات اور دیگر گروپ شامل ہیں۔ ہائیک لیڈر کے فرائض سلیم احسن اور ڈپٹی ہائیک لیڈر فرائض سردار علی شاہ نے سر انجام دیے۔ ملتان کور کے زیر اہتمام مظفر گڑھ فیلڈ فائرنگ رینج میں پاک فوج اور رائل سعودی لینڈ فورسز کی مشترکہ عسکری ٹریننگ۔ تربیتی مشقیں پاک فوج اور رائل سعودی لینڈ فورسز کو اپنی فوجی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے ایک منفرد ذریعہ فراہم کریں گی۔ دونوں افواج نے بھرپور طریقے سے تربیت میں حصہ لیا، نہایت خوش اسلوبی اور بلند جذبے کے ساتھ ٹریننگ سے مستفید ہوئے۔ تربیتی پروگرام میں مشترکہ بیٹل پی ٹی، چھوٹے پیمانے پر آپریشنز، روم کلیئرنس، نزدیک سے نشانہ بازی، فائرنگ اور ریپلنگ کے ساتھ ساتھ اور بھی جدید مشقیں کی گئیں۔ مشقوں کے ذریعے خطے میں دہشت گردی کے واقعات کو کم کرنے میں خاصی مدد ملے گی اور امن لانے کی طرف ایک مثبت پیش رفت ثابت ہوگی۔ اکاڑا میں ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر انسانی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی ٹیم نے کلیکشن پوائنٹ پر کارروائی کرتے ہوئے مردہ مرغیوں کی بڑی کھیپ پکڑ کر 2000 کلو گوشت برآمد کر کے طلب کر دیا گیا۔ کوٹ ڈی جی کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ملزمان ہلاک۔ پولیس کی جوابی فائرنگ میں مرتضی کریم بسان اور پرویز احمد حاجانو ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ملزمان نے 1 ہفتہ پہلے 7 سالہ علی رضا حاجانو کو اغوا کے بعد قتل کر کے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھیت میں پھینک دیے تھے۔ علی رضا کے قتل میں ملوث مزید 2 ملزمان گزشتہ رات کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ساماروں میں یونین کونسل کے گاؤں داد خان چانڈیوں کے کھیت کے قریب گاؤں سونو بھیل میں 3 گھر جل گئے، خاندان بچ گیا۔ بیٹی کی شادی کا جہیز، پردے اور کھانے پینے کا سامان بھی جل گیا۔ گاؤں والوں کی بھرپور کوششوں سے آگ پر قابو پا لیا گیا۔ حجرہ شاہ مقیم میں ایک اور معصوم بچے کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ 4 سالہ ننھے بچے کی لاش بھی فصلوں میں پھینک دی۔ اہل علاقہ نے ملزم کو پکڑ کر حوالہ پولیس کر دیا۔ واقعہ حجرہ شاہ مقیم کے نواحی گاؤں بدری داس میں پیش آیا۔ علاقہ بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ مردان میں نامعلوم افراد نے نوجوان کو قتل کر دیا۔ نوجوان طارق کی لاش جہاز منو ڈاک سے برآمد ہوئی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ٹی ایچ کیو ہسپتال تخت بھائی منتقل کر دیا۔ مقتول تخت بھائی مینا بازار میں کباڑ کا کام کرتا تھا۔ گزشتہ شام کام کے غرض سے گھر سے نکلا تھا، واپس نہیں آیا۔ واقعے سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ غازپور شہر کے اطراف کے مختلف دیہاتوں میں خسرہ کی وبا تیزی سے پھیلنے لگی۔ کئی معصوم بچے خسرہ سے متاثر ہو گئے۔ گاؤں دھنی بخش اوگاہی میں 2 سالہ بچہ کلیم اللہ اوگاہی دم توڑ گیا۔
अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम। और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों शिमला पहाड़ी, लक्ष्मी चौक, गवाल मंडी, कुर्तबा चौक, डेविस रोड, जौहर टाउन, गुलबर्ग, गार्डन टाउन समेत शहर के दीगर मकामात पर बूंदाबांदी हुई। कसूर, पत्तोकी, मुरीद के शेखुपुरा और दीगर शहरों में भी हल्की बारिश हुई। बादल बरसने के साथ चलने वाली ठंडी हवा ने सर्दी में इजाफा कर दिया। सराय आलमगीर और गिरदोनवा में हल्की और तेज बारिश के बायस मुतादिद इलाकों को बिजली की बंदिश का सामना है। शहर और गिरदोनवा में बारिश का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहा। तेज ठंडी हवाएं चलने से जाती सर्दी लौट आई है। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। अटक, जेहलम, चकवाल, तलागंग और मरी में तेज हवाएं और बारिश के बायस रेस्क्यू को हाई अलर्ट कर दिया गया है। वादी नीलम जहलम में शदीद बर्फबारी हुई, जिससे राब्ता सड़कों पर फिसलन से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर है। सवात, अपर और लोअर डेढ़ जिला करम में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। तफरीही मकाम शोघरान में 2 इंच और नारान में 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। बारिश बरसाने वाला मगरबी सिस्टम शुमाली बलोचिस्तान में दाखिल हो गया। कोट डीजी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुलजिमान हलाक हो गए। एसएसपी समीउल्लाह सोमरू ने बताया कि पुलिस ने कमसिन बच्चे अली रजा हाजानों के कत्ल के मरकजी मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुर्तजा करीम वसान और परवेज अहमद हाजानो हलाक हो गए। हलाक मुलजिमान ने एक हफ्ता पहले 7 साल अली रजा हाजानो को अगवा के बाद कत्ल करके लाश के टुकड़े टुकड़े करके खेत में फेंक दिए थे। अली रजा के कत्ल में मुलविस मजीद 2 मुलजिमान गुज़श्ता रात ही गिरफ्तार किए गए थे। खानेवाल के नवाही इलाके कोहीवाला में पेट्रोलिंग पुलिस ने इंसानी हमदर्दी की तारीख रकम कर दी। एम्बुलेंस न आने पर खातून को बर वक्त डीएचक्यू अस्पताल पहुंचाकर पेट्रोलिंग पुलिस का सर पकड़ से बुलंद कर दिया। मजीद देखते हैं सरदार कैसर चौधरी की इस रिपोर्ट में। पाल के नवाही इलाके कोहीवाला में पेट्रोलिंग पुलिस ने इंसानियत दोस्त पॉलिसी पर गामजान बस्ती गुलशनाबाद कोहीवाला का रिहायशी मेहनतकश हुसैन गुज़श्ता रात 12 बजे के करीब अपनी बीवी को डिलीवरी के लिए मोटरसाइकिल पर ले जा रहा था कि पुल चावन के करीब हालत तशवीशनाक होने पर सड़क पर अपनी बीवी को लिए बेयारो मददगार खड़ा था। किसी दौरान गश्त पर तानियात पेट्रोलिंग पुलिस के हेड कांस्टेबल मलिक अयाज ने अपनी टीम के हमरा सरकारी गाड़ी में मेहनतकश और इसकी बीवी को फौरी तौर पर डीएचक्यू अस्पताल खानेवाल पहुंचा दिया और हमदर्दी की मिसाल कायम कर दी। पेट्रोलिंग पुलिस की इस इंसानी हमदर्दी को खातून के अहले खाना और खानेवाल के शहरियों ने खूब सराहा। सरदार कैसर चौधरी, कोहिनूर न्यूज़, खानेवाल। एक माह कबल बस्ती वनीका में होने वाली हाउस डकैती की वारदात ट्रेस कर ली गई। खातून समेत 5 डाकू गिरफ्तार। 1 करोड़ से जायद मालिक का माल मसरूका बरामद कर लिया गया। थाना बी डिवीजन पुलिस की एसएचओ वहीद आरिफ के सरबराही में कामयाब कार्रवाई। बस्ती वनीका के रहायशी हाफिज कयूम के घर 1 माह कबल नामालूम डाकुओं ने वारदात की। डाकू हाफिज कयूम के घर से नकदी 36,27,000 रुपए और 34 तोला तलाई जेवरात छीन कर फरार हो गए थे। डीपीओ कसूर तारिक अजीज संधू ने वाकये का नोटिस लेते हुए एसएचओ बी डिवीजन को जल्द मुलजिमान की गिरफ्तारी का टास्क दिया था। थाना बी डिवीजन पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस को बरकार लाते हुए मुद्दई मुकदमा की करीबी रिश्तेदार मरकजी मुलजिम शाहिदा बीबी को गिरफ्तार किया। शाहिदा बीबी ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि उसने अपने 2 भाइयों और दीगर मुलजिमान के साथ मिलकर वारदात की थी। थाना बी डिवीजन पुलिस ने खातून शाहिदा बीबी, उसके 2 भाइयों सदीक उर्फ पिद्दी, इलियास फरियाद और नदीम मसीह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से वारदात के दौरान छीनी की 36,27,000 रुपए नकदी और 34 तोला तलाई जेवरात बरामद कर लिया। डीपीओ कसूर तारिक अजीज संधू ने अच्छी कारकर्दगी पर एसएचओ बी डिवीजन और उनकी टीम को शाबाश दी। समारोह में यूनियन काउंसिल के गांव दाद खान चारनियों के खेत के करीब गांव सोनो भेल में 3 घर जल गए हैं। खानदान बच गया। बेटी की शादी का जहेज, पर्दे और खाने पीने का सामान भी जल गया। गांव वालों की भरपूर कोशिशों से आग पर काबू पा लिया गया, जबकि गांव वाले बेबस मददगार बन गए। समारो शहर में माफिया सरगर्म है। सिमारी शहर कान के वार्ड नंबर 2 की आवाम का इलेक्शन के दिन से लेकर अब तक रंगड़ बरादरी के लोग काबिज हैं। इंतजामिया ने बड़े नुकसान के खौफ से उसे रोकने की कोशिश नहीं की। इन ख्यालात का इजहार सामरी टाउन कमेटी के काउंसलर खान मोहम्मद फकीर और दीगर ने प्रेस क्लब सिमारी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उनका कहना था कि समारू शहर पर पहले ही कब्जा माफिया का कब्जा है और कान पर कब्जा नाकाबिले बर्दाश्त है।
कश्मीर में बदअमनी रुकने का नाम नहीं ले रही। डाकुओं की वारदातों में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। खरोड़ थाना की हदूद में डाकुओं ने नौजवान को एक पकड़ लिया। मुखवी नौजवान की शनाख्त अताउल्ला सोलंकी के नाम से हुई। इत्तला मिलते ही पुलिस और बुरसा कचर की तरफ रवाना हो गए। मुखवी नौजवान के घर में मातम बर्पा हो गया। इलाके में खौफ व हरास फैल गया। सांगड़ नवाबशाह रोड सुल्तानकोट के पास गन्ने से भरी ट्रॉली सामने से आते हुए रिक्शे को बचाते हुए 2 मोटरसाइकिलों से टकरा गई। खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल सांगड़ में तिब्बी इमदाद देने के बाद नवाबशाह मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों का ताल्लुक 32 चक से है, जो पठान बरादरी से बताया जा रहा है। खबरों के उस्ताद अदबी फोरम की जानिब से मंसूर मनी की लिखी गई किताब की रोनवाई तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में अदब से वाबस्ता लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजीद देखते हैं खबरों से अब्दुल रज़ाक राजपूत की ये रिपोर्ट। किपरो के टाउन कमेटी में कायम शहीद मखदूम अब्दुल रहीम गिरोडी लाइब्रेरी हाल में उस्ताद अदबी फोरम की जानिब से संगड़ की महान हस्ती, सखी मर्द इंसान, दोस्त किरदार अलादाद उर्फ जज मरी की सवानाए हयात पर मंसूर मरी की लिखी गई किताब की रुनमाई तकरीब मुनक्कद की गई। तकरीब की सदारत सिंध के मशहूर शायर वली मोहम्मद वली ने की, जबकि मेहमान खास प्रोफेसर जाम खान हिंगोरजो थे। प्रोग्राम में सैयद दिलावर शाह, अकबर एस मंगरियो, इमाम बख्श मंगरियो, एम जुमन कुमार ने खिताब किया। इस मौके पर मुशायरा भी मुनक्कद किया गया, जिसमें फकीर अमर अब्बास बमरो, सोनो लाशारी, रमजान कसीम समेजो, पीरल मरी, मुमताज बोजदार, मनवर मला समेत देगर शायरों ने अपनी शायरी पेश की और प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। खबर केड़ी तो खेचरिया ऊंचा हुंदिया, खबर केड़ी तो खेचरिया ऊंचा हुंदिया, दुनिया में प्यारी सबका बस मां हुंदिया, दुनिया में प्यारी सबका बस मां हुंदिया। रही भुख ते उपान खे ढो डिनाई, रही भुख ते उपान खे ढो डिनाई, तती उसमें उघाटी छां हुंदिया। खबर केड़ी तो खेचरिया ऊंचा हुंदिया, दुनिया में प्यारी सबका मां हुंदिया। किते जान हुंदे अनजान या किते रे खुशबू सुरान या किते भुलजी रा लदम गोले, किते साए पदलू दोरोले, किते रात बुझा तो चवा बोले, किते अगोस किते आन या किते जान हुंदे अनजान या रे खुशबू सुरान या। तकरीब में हादी बख्श बमरो, फैसल बोजदार, अनवर अली परदेसी, सरमन जुम्मन, रहमान उमरानी समेत देगर अदब से वाबस्ता लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरामैन फजल उमरानी के साथ अब्दुल रज़ाक राजपूत, कोहिनूर। पीटीआई रहनुमा नहीद खावर ने कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाज किया। वसीम खावर, लियाकत खावर, सजाद खावर, खादिम हुसैन और दीगर के हमरा एहतजाजी मुजाहरा करके सख्त नारेबाजी की गई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शेख बरादरी ने कुछ अफराद जावेद शेख, सिकंदर अली शेख और खालिद शेख ने मेरे मकान पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। नहीद खावर का कहना था कि शेख बरादरी के मज़कूरा अफराद ने मेरा मकान किराए पर लिया था। गुज़िश्ता 2 साल से उन्होंने किराया देना भी बंद कर दिया और मेरे मकान, जिसकी अराजी 15,000 फुट पर मुश्तमिल है, जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। मजीद अराजी पर भी 4 दीवारी तमीर करके कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और मना करने पर संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने पुलिस इंतजामिया और मुतल्लिका हुकाम से पुरजोर मुतालबा किया है कि उनकी जमीन से फौरी तौर पर कब्जा खत्म करवाया जाए। ठट्ठा में मुनशियात के अड्डे पर मामूली बात पर झगड़ा, झगड़े में बदनाम जमाना मुनशियात फरोश गुलाम मोहम्मद उर्फ गुलामू ब्रोही के हाथ में एक शख्स जमील गंदरू हलाक हो गया। इतला मिलने पर मुनशियात के अड्डे पर पुलिस का ऑपरेशन लातादाद केसों में मुलविस मुनशियात फरोश गुलाम मोहम्मद उर्फ गुलामू ब्रोही को गिरफ्तार कर लिया गया। SHO ठट्ठा ने बताया कि हलाक शख्स को गुलामू ब्रोही और उसके साथियों ने कत्ल किया। तफ्तीश जारी है। और अब आपको बताएं कि शुमाली वजीरिस्तान में आज़ाद उम्मीदवार मलिक औरंगजेब खान के हक में एहतजाजी धरना 1 हफ्ते से मीरान शाह में जारी है। मलिक औरंगजेब खान के कज़न आबिद खान की क़यादत में आज के दिन कुतुब खेल से चश्मा पुल तक पैदल रैली भी निकाली गई। एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए आबिद खान का कहना था कि 8 फरवरी को इंतखाबात में जिस तरीके से धांधली की गई, इसकी मिसाल देना तारीख में नहीं मिलती। इंतखाबात में कुछ नादीद कुव्वतों ने हमारे मैंडेट को चोरी करके हमारे मद्दे मुकाबिल शिकस्त खुर्द उम्मीदवारों को खाते में डाल दिया है। अगर इन कुव्वतों ने अपनी रविश ना बदली तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे। आबिद खान का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात बन चुकी है। बेहतर यही होगा कि वो अपनी गलती तस्लीम करें और हमारा मैंडेट हमें वापस करें।
कबर में 2 रोज कबल फायरिंग से कौम परस्त रहनुमा और टीचर हिदायतुल्लाह लोहर के कत्ल के खिलाफ बुरसा का एहतजाज जारी है। बुरसा का सिविल सोसाइटी के हमरा नसीराबाद इंडस हाईवे पर एहतजाजी धरना शदीद नारेबाजी की। एहतजाजी धरने के बायस कराची से बलोचिस्तान जाने वाली मेन शाहराह बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहरीन से एसएसपी लाड़काना के मुज़ाकरात जारी हैं। बेटी ससई लोहार का कहना था कि जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होते तब तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। मेरे वालिद हिदायतुल्लाह लोहार को बेगुनाह कत्ल किया गया है। मुजाहिरीन का पुलिस के आला हुक्काम से मकतूल के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए इकदामात उठाने का मुतालबा। पुलिस की भारी नफरी धरने के मकाम पर मौजूद है। हुजरा शाह मुकीम में एक और मासूम बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। 4 साल नन्हे बच्चे की लाश भी फसलों में फेंक दी गई। अहले इलाका ने मुलजिम को पकड़कर हवाला पुलिस कर दिया। हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव बदरी डास में 4 साल मासूम बच्चे को दरिंदा सिफ्त ओबाश ने जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 4 साल मासूम बच्चे को फसलों में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया और लाश फसलों में ही फेंक कर फरार होने लगा था कि पकड़ा गया। मकतूल की शनाख्त मोहम्मद वसीम के नाम से हुई, जबकि सफाक कातिल को अहले इलाका ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम की शनाख्त 18 साल नबी बख्श के नाम से हुई। मकामी लोगों की इत्तला पर पुलिस थाना हुजरा शाह मुकीम पहुंच गई और मुलजिम को अपनी तहवील में ले लिया। मासूम बच्चे के कत्ल और ज्यादती की खबर के बाद इलाके भर में तशवीश की लहर दौड़ गई। ओकाड़ा में पंजाब बार काउंसिल की कॉल पर वकला बरादरी की हड़ताल। राव मोहम्मद अशरफ सदर बार ने कहा कि पंजाब भर के वकला के घरों पर गैर कानूनी छापे और गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं। बदर जुल्करनैन हैदर सेक्रेटरी बार ने कहा कि गिरफ्तार वकला को फिलफौर रिहा किया जाए। अदालतों को तकसीम करने वाला मतनाज़ नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए। पंजाब के वकला को तकसीम करने वाली साजिश की भरपूर मजम्मत करते हैं। हैदराबाद में एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से सूबाई हल्का PS 65 में खिदमत अंजाम देने वाले कारकुनान हमदर्द मोअज़्ज़िज़ीन के एजाज में इस्तकबालिया। हालिया इलेक्शन में काम करने वाले पोलिंग एजेंट्स, हमदर्द कारकुनान और शोबा खवातीन को खराज तहसीन पेश करने के लिए शानदार तकरीब मुनाकिद की गई। सूबाई हल्का 65 हैदराबाद के तमाम हमदर्द मोअज़्ज़िज़ीन, पोलिंग एजेंट्स, कारकुनान, जिम्मेदारान ने भरपूर शिरकत की। प्रोग्राम में हैदराबाद के मरूफ फनकारों और गुलकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया और हाजिरीन ने मजलिस के दिल जीत लिए। अवाम ने कारकुनान और भरपूर दाद दी। इस्तकबालिया प्रोग्राम मकामी हाल में मुनाकिद की गई। तकरीब में रुकने राब्ता कमेटी और मुंतखब रुकने कौमी असम्बली सैयद वसीम हुसैन, नौ मुंतखब रुकने सूबाई असम्बली 65 नासिर हुसैन कुरैशी, डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर जफर अहमद सदीकी, डिस्ट्रिक्ट ज्वाइंट इंचार्ज और कमेटी इंचार्ज 65 सैयद अजीज शहजाद कुरैशी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, मुख्तलिफ टाउन इंचार्जेस, टाउन कमेटी और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। अल खैबर पख्तूनख्वा स्काउट्स ओपन ग्रुप्स के जेर इंतजाम शांगला टू मालम जब्बा दूसरा सालाना स्नो हाइक फेस्टिवल मुनाकिद हुआ। फेस्टिवल 9000 फीट की बुलंदी पर 7 किलोमीटर पर बर्फबारी में मुनाकिद हुआ। फेस्टिवल में खैबर पख्तूनख्वा के 10 स्काउट्स ओपन ग्रुप्स और 45 स्काउट्स और लीडर्स ने शिरकत की। शिरकत करने वालों में सवात स्काउट्स ओपन ग्रुप मंगोरा सवात, मटा स्काउट्स ओपन ग्रुप मटा अपर सवात, एलम स्काउट्स ओपन ग्रुप मंगोरा सवात, उद्याना स्काउट्स ओपन ग्रुप मंगोरा सवात, पंजगोरा स्काउट्स ओपन ग्रुप तेमरगरा दीर लोयर, कोहाट स्काउट्स ओपन ग्रुप कोहाट, मरवत स्काउट्स ओपन ग्रुप लकी मरवत, सवाबी स्काउट्स ओपन ग्रुप सवाबी, खैबर स्काउट्स ओपन ग्रुप पिशावर, दस्तूरी मर्दान स्काउट्स ओपन ग्रुप मर्दान और गंधारा स्काउट्स ओपन ग्रुप पिशावर शामिल थे। हाइक लीडर के फराइज सलीम एहसन सवात और डेप्यूटी हाइक लीडर फराइज सरदार अली शाह लोयर दीर ने सर अंजाम दिए। और अब आपको बताएं कि महासारा के हल्के PK 40 में बड़े पैमाने पर धांधली बेनिकाब हो गई। इलेक्शन कंट्रोल रूम RO ऑफिस के बाहर से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अब्दुल शकूर खान के मोहर लगे जले हुए बैलेट पेपर्स बरामद हुए। 9 रोज जारी रिकाउंटिंग के आखिरी रोज अब्दुल शकूर खान को मुबैना तौर पर बनाने के लिए उनके वोटों की बड़ी तादाद जला दी गई है। RO सलीम जदून, DSP जावेद खान मौका पर पहुंच गए। उम्मीदवार अब्दुल शकूर खान ने PTI के कारकुनों को कॉलेज दरोहा पहुंचने की कॉल दे दी। धांधली ज़दा इलेक्शन नामंजूर है। डेप्यूटी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला काउंसिल पाकपतन सादिया मेहर की कबूला शरीफ आमद। डेप्यूटी कमिश्नर पाकपतन ने मारूफ बिजनेसमैन चौधरी ताहिर इकबाल जट से ECO गो पेट्रोलियम सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के हमरा कबूला शरीफ मेन बाजार में टफटाइल और स्ट्रीट लाइट्स का इफ्तिताह कर दिया। डेप्यूटी कमिश्नर ने टफटाइल और स्ट्रीट लाइट्स के इफ्तिताह के बाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी कबूला में तकरीब से खिताब किया।
डिप्टी कमिश्नर पाकपतन ने शहर को सेफ सिटी प्रोजेक्ट, कंप्यूटर लैब और दीगर अहम प्रोजेक्ट देने पर चौधरी ताहिर इकबाल का शुक्रिया अदा करते हुए उनकी काविश को सराहा। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन का अंजुमन ताजरान कबूला समेत दीगर शहरियों ने भरपूर इस्तकबाल किया। कबूला के शहरियों ने चौधरी ताहिर इकबाल का शहर के तरक्याती काम करवाने पर शुक्रिया अदा किया। जैकबाबाद में अगवा बराए तवान और डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह अफराद दिन दहाड़े शहरी से 2 लाख नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। अहले इलाका के मुताबिक सदर थाना की हदूद जेलशाह मोहल्ला में मुसल्लह अफराद असलहे के जोर पर जुम्मा खान सयाल से 2 लाख नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। डकैती वारदात की वीडियो कोहिनूर न्यूज ने हासिल कर ली है। मुसल्लह अफराद के आगे पुलिस बेबस दिखाई दे रही है। एक हफ्ते के दौरान डकैती और मोटरसाइकिलें छीनने की 21 वारदातें हो चुकी हैं। लाहौर रोड आलम बेकर्स के करीब बेकाबू ट्रॉलर गाड़ी पर चढ़ दौड़ा। हादसे के नतीजे में एक शख्स हलाक, 2 जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने एक जख्मी शख्स अब्दुल वाजिद को मौका पर फर्स्ट एड फ्राहम की और दूसरे शदीद जख्मी मोहम्मद शान को फर्स्ट एड के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। रेस्क्यू टीम ने जांबाग शख्स मोहम्मद शाहिद की लाश को पुलिस की तहवील में दे दिया। ट्रैफिक पुलिस ने फुटपाथ पर चढ़कर सड़क के दरमियान खड़ी गाड़ियों को हटाकर जीटी रोड की ट्रैफिक बहाल करवा दी। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि चिश्तिया के इलाके थाना शहर फरीद की हदूद में 2 ग्रुपों में तसादुम। पुलिस के मुताबिक तसादुम के दौरान एक शख्स गोली लगने से मौका पर जाँ बहक हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त 45 साल अता मोहम्मद के नाम से हुई। मुलजिमान फायरिंग के बाद मौका से फरार हो गए। पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जाँ बहक होने वाले शख्स की लाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि फरार होने वाले मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वजीराबाद के हल्का PP-35 के उम्मीदवार उस्मान यूसुफ इलेक्शन में मुबैना धांधली के हवाले से सबूत सामने ले आए। उन्होंने कहा कि हमारे साथ प्री पोल पोस्ट पोल दोनों तरीके से धांधली की गई। मेरे वालिद चौधरी मोहम्मद यूसुफ को गिरफ्तार करके उनका इलेक्शन से दस्तबरदारी का जबरदस्ती बयान रिकॉर्ड करवाया गया और चौधरी यूसुफ की जीत को हार में बदला गया। आरओ ने धांधली तो की, लेकिन धांधली में भी बेवकूफी करते रहे। NA-66 के उम्मीदवार को तो पोलिंग स्टेशन नंबर 5 में 860 वोट कास्ट हुए, लेकिन सूबाई हल्का में 1160 कास्ट करवा दिए गए। दीगर भी कई एक पोलिंग स्टेशंस पर ऐसे ही नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबली की वोट कास्टिंग का फर्क वाज़ेह है। सबूत मीडिया को दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में हमने दरखास्त दायर कर दी है। शफाफ इंक्वायरी के ख्वाह हैं। नून लीगी उम्मीदवार हारा हुआ था, लेकिन उसे फॉर्म 47 में फतेह याब करार दिया गया। हल्का PP-35 के अवाम और कारकुनान हर सूरत इस धांधली को बेनकाब करेंगे। 9000 से ज्यादा हमारी लीड को खत्म करके आरओ ने मुखालिफ उम्मीदवार को 1200 वोटों से फतेह याब करार दिया, जो बददयानती नहीं तो और क्या है। इस मौके पर इंसाफ लॉयर्स फोरम, तहरीक इंसाफ के कारकुनान और इंसाफ यूथ विंग ने अलामती एहतजाज भी किया। SSP टंडुवाला यार अब्रेज अली अब्बासी के हुक्म पर पुलिस का मनशियात फरोशो, जराइम पेशा नासिर, आदि मुजरमान, कच्ची शराब, गुटखा, मेनपुरी के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। SHO बकेरा शरीफ, मुख्तार अहमद ठीबू और बड़े मंशी तौसीफ अराई ने अपनी टीम के हमरा मकबर की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को मेनपुरी जबकि एक नौजवान को शराब केस में गिरफ्तार करके तीनों मुलजिमान पर बकेरा शरीफ थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO बकेरा शरीफ, मुख्तारा अहमद ठीबू और बड़े मंशी तौसीफ अराई ने अपनी टीम के हमरा मकबर की इत्तला पर मकबूल मोरी के मकाम पर कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान रेहान और इशफाक अली अराई को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 300 मेन पूड़ी बरामद करके खिलाफ थाना बकेरा शरीफ पर मुकदमा दर्ज कर लिया। एक और कार्रवाई में SHO बकेरा शरीफ, मुख्तार अहमद थीबो और बड़े मुंशी तौसीफ अराई ने अपनी टीम के साथ कार्रवाई करते हुए एक नौजवान सलीम उर्फ अबू थीम मोक शरीफ के मकाम पर गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 11 शराब की बोतलें बरामद कर दी। आम इंतखाबात के बाद मखसूस सियासी जमात से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स मजमूम मकासद के हुसूल के लिए सरकारी मुलाजमीन को हरासा करने पर उतर आए। आम इंतखाबात के खत्म होते ही मखसूस सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स ने अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए अवाम को इश्तियाल दिलाना शुरू कर दिया। मखसूस सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स इंतखाबात में रियासती इदारों को धांधली का जिम्मेदार ठहरा कर अवाम को एक बार फिर बगावत पर उकसा रहे हैं। मखसूस सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स ने सरकारी अफसरान को सरेआम हरासा करना शुरू कर दिया है, जिनमें मुतादिद कमिश्नर्स, आरओज और पुलिस एहलकार शामिल हैं।
इलेक्शन में सरकारी अफसरान अपने कानूनी और आईनी फराइज सर अंजाम दे रहे थे, उनको ऐसे गैर कानूनी तौर पर हरासा करना इंतहाई शर्मनाक और काबिल मुज़म्मत है। मखसूस सियासी जमात से जुड़े अकाउंट्स की जानिब से सिक्योरिटी और सरकारी अफसरान के अहले खाना को भी धमकियां दी जा रही हैं। अपनी मेहनत और काबिलियत से कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस ऑफिसर बनने वाली खवातीन अफसरान को भी हरासा किया जा रहा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को मखसूस सियासी जमात की कार्रवाई का नोटिस लेना होगा। किसी भी सियासी लीडर या पार्टी को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो सरकारी अफसरान को अपने मजमूम मकासद हासिल करने के लिए हरासा करें। मखसूस सियासी जमात की जानिब से सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ बाकायदा मुहिम भी चलाई जा रही है। मखसूस सियासी जमात के सोशल मीडिया अकाउंट सिक्योरिटी और सरकारी अफसरान की तस्वीर शाया करके उनकी जानों को खतरे में डाल रहे हैं। मखसूस सियासी जमात के कारकुनान की तरफ से सिक्योरिटी अफसरान के खिलाफ ये घटिया प्रोपेगेंडा इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक है। मखसूस सियासी जमात के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से सिक्योरिटी और सरकारी अफसरान पर लगातार इल्जामात के जरिए अवाम को इंतशार और फसाद की तरफ धकेला जा रहा है। रियासती इदारों और सिक्योरिटी कारकुनान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मकसद अवाम को भड़काना और मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। मुल्क भर की तरह नारंग मंडी में भी सुई गैस की लोड शेडिंग जारी। मकामी शहरियों की जानिब से गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। मजीद जानते हैं कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी में सुई गैस की बदतरीन लोड शेडिंग ने सार्फिन को डला दिया है। पूरा दिन और रात गैस तक सार्फिन सुई गैस के इंतजार में चूल्हों के आगे बैठे रहते हैं। यहाँ सुई गैस ने परेशान कुन सूरत इख्तियार कर ली है। अवाम के शदीद एहतजाज के बावजूद भी सुई गैस का मसला हल नहीं किया जा रहा। यहाँ कई गलियों में सुई गैस के लीकेज का मसला भी बना हुआ है। वहाँ कई रोज से मुकम्मल गैस की सप्लाई बंद है। मजीद जानते हैं शहरों की। इस वक्त नारंग के अंदर जो सुई गैस का मसला बड़ी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और गवर्नमेंट ने एक मखसूस टाइम दिया हुआ है, सुबह दोपहर शाम का, वो घंटा डेढ़ घंटे के लिए गैस आती है। लेकिन वो भी बहुत सारे इलाके हैं कि जहाँ पे ये गैस नहीं आ रही, जिसकी वजह से लोगों को घरों के अंदर परेशानियां हैं। सुबह लोगों को जॉब के ऊपर जाने के लिए अंदर परेशानी आती है, ख़वातीन के लिए मसाइल हैं। तो मेरी और बाब इख्तियार से खुसूसन जो यहाँ के MLA साहब हैं उनसे गुजारिश क्या वो इसका नोटिस लें और दूसरे जिनके इक़्तिदार में जो मजे लौट रहे हैं उनसे गुजारिश है कि ये उनका हल्का है। हल्के के जो भी बुनियादी मसाइल हैं वो सुई गैस का है, वो हॉस्पिटल का है, वो बिजली का है। जो शेड्यूल दिया जाए उसके मुताबिक तो वो चीज़ें मुयस्सर आनी चाहिए और अगर ये नहीं आ रही तो उसका कौन जिम्मेदार है। तो मेरी सुई गैस से काम से भी गुजारिश है कि नारंग मंडी के अंदर जो गैस का मसला आ रहा है, यहाँ के जो प्रेशर कम आ रहा है, मखसूस टाइम के अंदर भी गैस नहीं आ रही, उनको गैस दी जाए। हम इसकी मजम्मत करते हैं कि हम बिजली के बिल जमा करवा रहे हैं और फिर हमें गैस क्यों नहीं दी जा रही। और इसी तरह बलाए काम से भी गुजारिश है इसका नोटिस लें। नूरपुर थल का रिहायशी मोहम्मद अनवर सोहा चकियां के करीब ट्रैफिक हादसे में जाम बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद अनवर सोहा वल्द हक नवाज साकन एनू चकियां के करीब गाड़ी चला रहा था कि सामने से आने वाले ट्रक से तसादुम में मौका पर जाम बहक हो गया। मरहूम की नमाज जनाजा आज 3 बजे आबाई गांव एनू थल में अदा की गई। स्पीडर कॉलेज में तलबा तालिबात के लिए स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। तलबा तालिबात ने चारों सूबों के इलाकाई लिबास पहनकर रिवायती तहजीब की अक्कासी पेश की है। रस्साकुशी, बोरी रेस समेत दीगर मुकाबले मुनाकिद किए गए। मंडी बहाउद्दीन स्पीडर कॉलेज की जानिब से तलबा तालिबात के लिए स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस मौका पर तलबा तालिबात की जानिब से चारों सूबों के इलाकाई लिबास पहनकर शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया। बोरी रेस, 100 मीटर डबल सिंगल दौड़, चाटी रेस और रस्साकुशी समेत मुख्तलिफ खेलों के प्रोग्राम हुए जिसमें तलबा तालिबात ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। प्रिंसिपल प्रोफेसर हमीज अहमद ने बेहतरीन कारकर्दगी के तलबा तालिबात में तारीफी इसनात और इनामात तकसीम किए। उनका कहना था कि सुपीरियर कॉलेज ने हमेशा तलबा की तालीम और तरबियत के लिए मुनफरिद किरदार अदा किया ताकि वो माशरे के कारामद शहरी बनकर मुल्क की तरक्की के लिए अपना मस्बत किरदार अदा कर सके। तलबा तालिबात को चाहिए कि वो भी तालीम के हसूल के लिए अनथक मेहनत करें। बहावलपुर में अल-खिदमत फाउंडेशन के ऑर्फिन केयर प्रोग्राम के तहत यतीम बच्चों और माओं के लिए मेडिकल कैंप लगाया, जहां पर गरीब और मुस्तहिक यतीम बच्चों और उनकी माओं के मुफ्त तिब्बी मुआयने के साथ साथ टेस्ट किए गए और मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। 600 से ज्यादा मरीजों का चेकअप किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं फजल जावेद खान। अल-खिदमत फाउंडेशन के ऑर्फन केयर प्रोग्राम के तहत यतीम बच्चों और उनकी माओं के लिए मेडिकल कैंप लगाएगा, जहां पर गरीब और मुस्तहिक यतीम बच्चों और उनकी माओं का मुफ्त तिब्बी मुआयने के साथ साथ
तमाम इकसाम के मेडिकल टेस्ट किए गए, इनको मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। इस मौके पर आरफन केयर प्रोग्राम के डायरेक्टर मंसूर बाजवा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अल खिदमत फाउंडेशन आरफन केयर प्रोग्राम के तहत मुल्क भर के 10,000 से जायद यतीम बच्चों को तलीम, खुराक, तरबियत और ज़हनी जिस्मानी नशोनुमा के बेहतरीन मौके फराहम किए जाते हैं। इसके साथ साथ उनकी सेहत का भी खुसूसी ख्याल रखा जाता है। इस मकसद के लिए वक्तन वक्त मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, जिन पे उनका मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया जाता है और अद्वियात फराहम की जाती हैं। इस सिलसिले में वखीर अफराद के ताउन से मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें अल खिदमत फाउंडेशन केयर प्रोग्राम के तहत रजिस्टर 600 से ज़्यादा यतीम बच्चों और उनकी माओं का मुकम्मल मेडिकल चेकअप के बाद मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। भावलपुर में टू बी वेरी एग्जैक्ट हमारे पास 538 बच्चे हैं जो हम स्पॉन्सर किए हुए हैं, जिनको और हर बच्चे के ऊपर हमारे अखराजात जो है वो माहाना 5,500 रुपये हैं। और एक बच्चे को जब हम एक दफ़ा स्पॉन्सर करते हैं तो फिर उसे इंटरमीडिएट तक लेकर जाते हैं। अक्सरियत बच्चों की वो होती है जो प्राइमरी क्लासेस में रजिस्टर करते आते हैं, वहाँ से जाते हैं। और ये जो इवेंट है ख़ासतौर पर हेल्थ स्क्रीनिंग वाला, इसकी खसूसियत ये है कि हर बच्चे के कम अज़ कम साल में एक दफ़ा स्क्रीनिंग होती है, जिसमें उसके तमाम मेडिकल टेस्ट, उसकी मेडिकल चेकअप, उसकी एग्जामिनेशन, उसकी आँखों का मुलाजा, फिर उसको जितनी अद्वियात की ज़रूरत होती है वो फराहम की जाती है। और उसके अलावा उनकी जो माएँ हैं बेबगान होती हैं, उनकी माएँ हैं या उनके भाई बहन हैं, उनको भी हम उसके साथ ही सारा मेडिकल चेकअप करवा लेते हैं और उनको भी ये फैसिलिटी जो है वो देते हैं। वालेकुम, मेरा नाम है आसफा बीबी। आज हम यहाँ पे आए हैं अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से। यहाँ पे एनुअल हेल्थ स्केयरिंग इन्होंने लगाया है। यहाँ पे हमारा प्रॉपर इलाज किया जाता है। इन्होंने डॉक्टर्स को बुलाया है और मेडिसिन भी देंगे हमें, हमारे वालिदैन का, और हमारा मुकम्मल इलाज करेंगे। ये इन्होंने मेडिसिन भी दी है, तो हम अल खिदमत फाउंडेशन के शुक्रगुजार हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सवेरा इब्राहिम है। आज हम यहाँ पर अल खिदमत फाउंडेशन में हम अपना सारा इलाज कराने आए हैं और उसका आइज़ का भी चेकअप करवाएंगे और प्रॉपर सारा चेकअप होगा। और यहाँ पे जो बाजवा खान है उन लोगों ने हमें बताया है हर साल हमारा यहाँ पे फंक्शन होता है और हमें तालीम हासिल करने के लिए भी वहाँ हमें बुक्स देते हैं, हर चीज़ हमें हासिल करने के लिए देते हैं जो हमारे पास नहीं होती। थैंक यू। मेडिकल चेकअप के लिए आया हूँ। मुझे डॉक्टर ने चेक किया और कहा बिल्कुल ठीक हूँ। फिर क्या करना है? और फिर रमजान शरीफ में रोजे रखो। कैमरामैन खुरम शदाद के साथ फजल जुवैद खान। डेरा गाजी खान बच्चों को बर वक्त हिफाजती टीके लगाने पर अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल पंजाब भर में पहले नंबर पर आ गया है। इस हवाले से मुतालिका स्टाफ में असना तकसीम की गई। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अली मीरानी की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान बच्चों को हिफाजती टीके बर वक्त लगाने पर अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान पंजाब भर में पहले नंबर पर आ गया। सीईओ हेल्थ और एमएस टीचिंग अस्पताल डॉक्टर सैमा मतूल की जानिब से मुतल्लिका स्टाफ को बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर तारीफी असनाद दी गई। बतूल सुमरा, एमएस अल्लामा इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल डीजी खान। आज हमने अपने तमाम ईपीआई के अमले को सराहने के लिए एक एक्टिविटी की है। यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल डीजी खान हॉस्पिटल जो अल्लामा इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल में स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में पूरे पंजाब में हमारा हॉस्पिटल लास्ट 5-6 मंथ से टॉप पर है ईपीआई वैक्सीनेशन में। हमने अपने अमले को आज सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और सीईओ हेल्थ साहब को दावत दी थी इसमें, और उनके ताउन से हमें कंप्लीट लॉजिस्टिक वैक्सीन प्रोवाइड की जाती हैं और सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक हमारा अमला यहाँ मौजूद रहता है। इस मौके पर एमएस अस्पताल ने कहा कि हमारा स्टाफ दिन रात काम कर रहा है और इनकी मेहनत की वजह से आज पंजाब भर में हमारा टीचिंग अस्पताल पहले नंबर पर आ गया है। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, कोहिनूर, डेरा गाजी खान। जलालपुर भटिया में अपनी जमीन से दरख्त काटने से मना करने पर मुश्तल अफराद ने बेवा को वहशाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा खातून का कहना है कि मुल्जिमान ने बरहना करके तशद्दुद किया। पुलिस ने भी अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। मुकदमे के इंदराज के लिए थाना कसी से पुलिस ने सारा दिन बैठाए रखा। खातून ने आला हुकाम से नोटिस देकर मुकदमा दर्ज करवाने की अपील कर दी है। ओकाड़ा में डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर इंसानी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी टीम ने कलेक्शन पॉइंट पर कार्रवाई करते हुए मुर्दा मुर्गियों की बड़ी खेप पकड़कर 2000 किलो गोश्त बरामद करके तल्फ कर दिया। मज़ीद जानते हैं आदिल रशीद की इस रिपोर्ट में।
ڈی جی فوڈ اتھارٹی آسم جاوید کی ہدایت پر انسانی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی ٹیم نے پولیس کے ہمراہ فیصل آباد روڈ کنال کالونی میں کلیکشن پوائنٹ پر کارروائی کرتے ہوئے مردہ مرغیوں کی بڑی کھیپ پکڑ لی۔ 2000 کلو مردہ مرغیوں کا گوشت برآمد کر کے تلف بھی کر دیا گیا۔ کلیکشن پوائنٹ مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مردہ مرغیوں کا گوشت شہر بھر میں مختلف فوڈ پوائنٹ پر سپلائی کیے جانے کا انکشاف۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 2 موٹر سائیکلیں اور دیگر سامان بھی قبضے میں لے لیا۔ مردہ مرغیوں کا گوشت تلف کر کے سپلائر کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی آسم جاوید کا کہنا ہے کہ عوام کو مردار گوشت کھلانے والے عناصر کی سرکوبی کے لیے سخت ایکشن لیا جائے گا۔ انسانی زندگیوں کی حفاظت ہمارے لیے اولین ترجیح ہے۔ یہ ملزمان کسی بھی رائٹ کے مستحق نہیں، ان کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ انسانی زندگیوں کے ساتھ منفی کھلواڑ ناقابل برداشت ہے۔ معاشرے میں موجود ہر فرد واحد ایسے عناصر کے خلاف آواز اٹھائیں اور ان کا خاتمہ کرنے کے لیے محکمہ فوڈ اتھارٹی کا ساتھ دیں تاکہ غازپور شہر کے اطراف کے مختلف دیہاتوں میں خسرہ کی وبا تیزی سے پھیلنے لگی۔ کئی معصوم بچے خسرہ سے متاثر ہو گئے۔ گاؤں دھنی بخش اوگاہی میں 2 سالہ بچہ کریم اللہ اوگاہی دم توڑ گیا۔ اہل دہی کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت کے اعلی افسران کو شکایت کرنے کے باوجود بھی محکمہ صحت کی ٹیمیں نہیں پہنچی۔ کافی بچے خسرہ کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ محکمہ صحت کی ٹیمیں خسرہ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائیں، اہل علاقہ نے مطالبہ کر دیا۔ ہری پور پریس کلب میں ڈاکٹر چند مبارک ہزاروی کے زیر اہتمام بزم ہزارہ کی 3ری سالگرہ کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ہزارہ بھر سے مصنفین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ انٹرنیشنل رائٹر فورم کے صدر شہزاد افق اعظم قادری اور نوید ملک نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں ہری پور سے راشد محمود کی اس رپورٹ میں۔ ہری پور پریس کلب میں ڈاکٹر چند مبارک ہزاروی کے زیر اہتمام مصنفین ہزارہ کی 3ری سالگرہ کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں مصنفین ہزارہ کے علاوہ مہمان خصوصی انٹرنیشنل رائٹر فورم کے صدر شہزاد افق، صدر تقریب محمد اعظم قادری، بزم کے صدر ملک عظیم نشاد، جنرل سیکرٹری مفتی عنایت الرحمان، پریس کلب کے صدر ذاکر حسین تنوری، سینئر نائب صدر مشرف ہزاروی، سینئر صحافی صداقت حسن، چیمبر کے لا اینڈ آرڈر کمیٹی کے چیئرمین ملک شہید، سہیل احمد سہیل، ملک نوید، نہیم عابد، سینئر صحافی یونس مجاز، ہنکو شاہد، جاوید اختر امن و دیگر اسلام آباد ٹیکسلا کشمیر سے بھی قلمکاروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ صدر تقریب محمد اعظم قادری نے نہایت عمدگی سے بزم اور اراکین بزم کے کارہائی پر روشنی ڈالی اور کتب کی اشاعت میں معاونت پر شہزاد افق کی گراں خدمات کو سراہا۔ مصنفین نے چیف ایڈیٹر ندائے خلق ڈاکٹر چند مبارک ہزاروی کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ہمیشہ محبت اور کشادہ دلی سے ہماری تحریروں کی اشاعت کی اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ انٹرنیشنل رائٹر فورم کے صدر شہزاد افق نے کہا کہ بزم میں مصنفین ہزارہ علم و ادب کے میدان میں محنت و لگن سے بے لوث کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اہل قلم کسی بھی مملکت و معاشرے کی تعمیر و ترقی کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ تقریب میں کیک بھی کاٹا گیا اور شرحا و مصنفین کی کارکردگی پر اسناد بھی پیش کی گئیں۔ مقررین نے مزید کہا کہ ہماری تنظیم کا بنیادی مقصد ہزارہ کی تاریخ، ثقافت، زبان اور ادب کے فروغ کے ساتھ ساتھ شعراء، ادیبوں اور لکھاریوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا ہے۔ ہزارہ کے اہل قلم اور جرات مندانہ کردار کسی سے پوشیدہ نہیں۔ آخر میں ڈاکٹر چند مبارک ہزاروی نے تمام مہمانوں اور بزم مصنفین ہزارہ کا شکریہ ادا کیا۔ لکی مروت میں ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن نے ڈسٹرکٹ یوتھ آفس کے تعاون سے علاقے میں کھیلوں کے میدانوں کو آباد کرنے کے لیے کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا۔ لکی چیلنجز کرکٹ گراؤنڈ پر ڈی سی اے حیدر آصف نواز کی نگرانی میں کھیلے جانے والے ٹورنامنٹ میں علاقے کی 35 ٹیموں نے حصہ لیا۔ مزید جانتے ہیں شریف اللہ خان مروت کی اس رپورٹ میں۔ لکی مروت میں ڈسٹرکٹ کرکٹ ایسوسی ایشن نے ڈسٹرکٹ یوتھ آفس کے تعاون سے علاقے میں کھیلوں کے میدانوں کو آباد کرنے کے لیے کرکٹ ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا۔ لکی چیلنجر کرکٹ گراؤنڈ پر ڈی ایس اے صدر آصف نواز کی نگرانی میں کھیلے جانے والے اس ٹورنامنٹ میں علاقے کی 35 ٹیموں نے حصہ لیا۔ فائنل میچ لنڈیوا زلمی اور شازیب خان زادہ کلب کے درمیان کھیلا گیا، جو کہ لنڈیوا زلمی نے 25 رن سے ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ میچ کے مہمانان خصوصی ڈسٹرکٹ یوتھ آفیسر عبدالقادر بیٹانی، تحصیل میئر لکی مروت شفقت اللہ خان، پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈویژنل جنرل سیکرٹری ڈاکٹر سرفراز خان اور پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے سٹار کھلاڑی ثنا خان مروت تھے۔
इस मौके पर मेहमानों का कहना था कि हमारा मकसद खिलाड़ियों के लिए सहूलियात पैदा करना है और लकी मरवत में खेलों के मैदानों को आबाद करना है। पकार द चमुड़ा स्पोर्ट्स इवेंट्स और दा से इन्वायरमेंट बराबर को چې دو سپورټس طرف ته اټریکټ کیږي دا ورته یم چې تاسو د چې کوم ایکسټرا کریکولر اکټیویټیز دي دا تاسو ایجوکیشن سره جاری ساتو د موږ یوت افیس د نوجوانانو فیوچر سنار کولو د لپاره یا دغه پراپر پلیټ فارم ورکونو لپاره کار کوي لکه ضلع یو مشهور گیم دا तख्त भाई का इलाका साड़ू शाह दौरे जदीद में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। आमदोरफ्त का वाहिद रास्ता खस्ता हाली का शिकार है। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत रोड पर बजरी डालकर रोड को पैदल चलने के काबिल बनाया। इलाका मकीनों ने मुतालिका इदारों से पुख्ता रोड की तामीर का मुतालबा किया है। इस मौके पर हजरत उस्मान एडवोकेट का कहना था कि हम आबाओ अजदाद के ज़माने से इस इलाके में रह रहे हैं, लेकिन अभी तक हम पुख्ता रोड से महरूम हैं। एमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू 1122 भी हमारे इलाके तक नहीं पहुंच पाती। मर्दान में नामालूम अफराद ने नौजवान को कत्ल कर दिया। नौजवान तारिक इलाज जहाज वन डॉक से बरामद हुई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल तख्त भाई मुंतकिल कर दिया। मकतूल तख्त भाई मीना बाजार में कबाड़ का काम करता था। गुज़िश्ता शाम काम की गर्ज से घर से निकला था, वापस नहीं आया। वाक़े से इलाके में खौफ व हरास फैल गया। मुल्तान कोर के ज़ेर एहतमाम मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका अस्करी ट्रेनिंग की गई। तरबियती मशकें पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस को अपनी फौजी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए एक मुनफरिद जरिया फराहम करेंगी। दोनों अफवाज ने भरपूर तरीके से तरबियत में हिस्सा लिया, निहायत खुश उसलूबी और बुलंद जज्बे के साथ ट्रेनिंग से मुस्तफीद हुए। तरबियती प्रोग्राम में मुश्तरका बीटल PT, छोटे पैमाने पर ऑपरेशंस, रूम क्लियरेंस, नजदीक से निशानाबाजी, फायरिंग और रिपेलिंग के साथ साथ और भी जदीद मशकें की गईं। इन मशकों में कोबरा हेलीकॉप्टर ने भी हिस्सा लिया। दोनों फोर्सेस ने दहशतगर्दी के तनाजुर में हेलीकॉप्टर से माउंटिंग और डिसमाउंटिंग की मशकों पर उबूर हासिल करने के लिए सख्त ट्रेनिंग की। मशकों के जरिए खत्ते में दहशतगर्दी के वाक़यात को कम करने में खासी मदद मिलेगी और अमन लाने की तरफ एक मुस्बत पेशरफ्त साबित होगी। इमाम बारगाह गुलस्ताने पंजतन जमजम स्ट्रीट चौहर में जश्न हजरत कासिम इब्न हसन 6 शबान को मनाया गया। जश्न में मनकबत गुजार रजा सैदी, खलील शुएब जाफरी और अली जैन अली वसी ने बारगाह सैयदा में खराज अकीदत पेश किया। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि इमाम बारगाह गुलिस्तान पंजतन जमजम स्ट्रीट चौबोर्जी में जश्न हजरत कासिम इब्न हसन 6 शबान को मनाया गया। जश्न में मनकबत गुजार रजा जैदी, खलील शुएब जाफरी और अली जैन अली वसी ने बारगाह सैयद में खराज अकीदत पेश किया। वजारत तवानाई की अदम तवज्जो की वजह से लेस्को एहलकारों को गुंडागर्दी पर मबनी मुज़ाहमत का मुसलसल सामना करना पड़ रहा है। गवालमंडी सब डिवीजन के रिकवरी स्टाफ लाइनमैन निसार और अब्दुल जलील को नादहिंदा मोहम्मद अशरफ, जबरान अशरफ और उमर अशरफ ने हमला कर दिया। आहनी रॉड से तशद्दुद के बायस एहलकारों को शदीद जख्मी कर दिया गया। मुतालिका स्टाफ हाइड्रो यूनियन के नुमाइंदों ने अपनी मदद आप के तहत पर्चा दर्ज करवा लिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज साजिद काजमी से। जी साजिद, अपडेट कीजिएगा। जी कोहिनूर, वजारत तवानाई की अदम तवज्जो की वजह से लेस्को एहलकारों को गुंडागर्दी पर मबनी मुज़ाहमत का मुसलसल सामना करना पड़ रहा है। लेस्को की ग्वालमंडी सब डिवीजन के रिकवरी स्टाफ लाइनमैन निसार और अब्दुल जलील को डिफाल्टर मोहम्मद अशरफ, जिब्रान अशरफ और उमर अशरफ से बिल की वसूली के तकाजे पर आहनी राड से तशद्दुद का निशाना बनाया गया और शदीद ज़रबे लगाई। मुतलका स्टाफ और लोकल नुमाइंदगान हाइड्रो यूनियन ने बामुश्किल अपनी मदद आपके तहत पर्चा दर्ज करवा लिया, मगर कोहिनूर जो खौफनाक बात है कि वजारत तवानाई ने आज तक कहीं भी किसी भी मौके पर इनकी खिदमात को सराहा नहीं, तारीफ नहीं की, एतराफ़ नहीं किया या फ़ख्र से
और बड़े जाहो जलाल से ऐलान जरूर करते हैं कि हमने इतनी बिजली चोरी पकड़ ली, इतनी रिकवरी कर ली, लेकिन इन बेचारों को, जांबाजों को मौत के मुंह पर बंदूक की नोक पर छोड़ दिया है, लवारिस छोड़ रखा है। इनकी हिफाजत के लिए आज तक वजारत तवानाई ने इस्लाहात मुतारिफ नहीं करवाई, जो एक वजारत तवानाई पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चीनी तर्जुमान की कामयाब इंतखाबात के इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। चीनी तर्जुमान ने पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुस्तहकम और हमवार तरीके से मुनक्किद किए गए। पाकिस्तान हमारा करीबी दोस्त और हमसाया मुल्क है। चीन पाकिस्तान की आने वाली नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहिशमंद है। चीन पुरुमीद है कि पाकिस्तान की मुतल्लिका जमातें इंतखाबात के बाद सियासी यकजहती और समाजी इस्तेकाम को बरकरार रखने के लिए मिलकर काम करेंगे। चीन पाकिस्तान कम्युनिटी की तामीर को तेज करने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने की उम्मीद रखता है। दोनों ममालिक के आवाम के फायदे के लिए नया दौर शुरू किया जाएगा। हमें यकीन है कि पाकिस्तान में मुतालिका फरीक यकजहती और कायम रह सकते हैं और मुतालिका मसाइल को हल करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। मानसहरा की तहसील ओगी में शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। नालों में शदीद तुगयानी, इंतजामिया इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। तफसीलात जानते हैं डॉक्टर अतीक चांद की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह उगी में भी शदीद बारिश। पिछली 24 घंटे से मुसलसल बारिश जारी और पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम इंतहाई सर्द, दर्जा हरारत 2 रिकॉर्ड किया गया। मुसलसल बारिश की वजह से नाला सरोड़ में शदीद तोजानी, पानी की रफ्तार और सतह में बतदरीज इजाफा। ईवान तिजारत उगी के सरपरस्त आला मौलाना उबैदुर्रहमान हैदरी, सदर अताउल्लाह खान तनोली, मोहम्मद यूसुफ, ताहिर रफ़ी, नायब सदर आदिल खान, शूरा के वाइस चेयरमैन नवाज लाला, फाइनेंस सेक्रेटरी साकिब सानी और जॉइंट सेक्रेटरी कारी न्याज का नाला सरोड़ से मुल्हिका मार्केटों इस्माइल मार्केट, सब्जी मंडी मार्केट, खुशहाल मार्केट, शाहजी मार्केट, मारूफ मार्केट का दौरा और ताजिर बरादरी को अपना सामान हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। TMA, तहसील हुकूमत और फायर ब्रिगेड और वेलफेयर तंजीमों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। इसके साथ साथ नाला सरोड़ से मुल्हिका आबादी, तारिक रोड का छोटा पुल और तनोली आबाद नजग्रेड स्टेशन छोटा पुल भी पानी में। आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रका वाले के बेटे अमीर बिलाज टीपू की नमाज जनाजा शाह आलमी चौक में अदा कर दी गई। सख्त सिक्योरिटी में मियानी साहब कब्रिस्तान में तदफीन की गई है। तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मियानी साहब कब्रिस्तान में मौजूद हूँ, जहाँ पर अमीर बिलाज को लाखों सोगवारों की मौजूदगी में जो है वो दफन कर दिया गया है। मियानी साहब के अंदर इनकी नमाज जनाजा करवाई गई थी और बाकायदा तौर पर एक बड़ा हजूम था। जिस तरह से चूंग के इलाका में अमीर बिलाज को जो है वो फायरिंग करके कत्ल किया गया था और उसी वक्त उसके गन मैनों की फायरिंग से बाकायदा शूटर्स भी जो है वो मारा गया था। पुलिस तहकीकात कर रही है। 3 लोगों को अभी तक CIA ने गिरफ्तार कर लिया है। नमाज जनाजा के हवाले से देखा जाए तो एक बड़ी तादाद में सियासी और समाजी रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद थे और अभी जो कुछ ही देर पहले जो है वो बिलाज को बाकायदा तौर पर मियानी साहब कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो नमाज जनाजा के साथ मौजूद थी। तकरीबन 30 से ज़ायद SHO मौजूद थे। इसके अलावा DSP मौजूद थे, SSP ऑपरेशन भी थे, SP सिटी भी मौका पर मौजूद थे और लाखों सोगवारों की मौजूदगी में इसको जो है वो मियानी साहब कब्रिस्तान में उसकी तदफीन कर दी गई है। ताहाल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिस तरह से शकील भट्ट सब इंस्पेक्टर की बात की जाए तो शकील भट्ट सब इंस्पेक्टर को भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है, क्योंकि 2010 में इसके वालिद जो थे टीपू ट्रका वाला, वो लाहौर एयरपोर्ट पर उनको कत्ल किया गया था गोलियां मारकर। उस वक्त भी जो शकील भट्ट सब इंस्पेक्टर थे उनको लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे और आज भी इसी तरह से चूंकि इलाका में शादी की तकरीब में बारात के साथ बैठे हुए शकील सब इंस्पेक्टर जो कि CIA में तैनात हैं वो भी मौजूद थे। ताहाल पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है, हमारे जराये के मुताबिक भी ये बात सामने आ रही है कि उनको शामिल तफ्तीश कर लिया गया है और बाकायदा तौर पर मुजफ्फर नाम का हमारे जराये के मुताबिक मुलजम सामने आ रहा है कि मुजफ्फर के नाम से जो है वो उस शूटर की शनाख्त की गई है और बाकायदा तौर पर जिस तरह से गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है, पुलिस की टीमें जो है वो रेडिंग पार्टी जो है वो तैयार कर ली गई है और इनके घरों के ऊपर छापे भी मारे जा रहे हैं। जी ठीक है वसीम साबिर, बहुत शुक्रिया, आप तमाम तर तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे।
और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से पर वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार।